اور آج میرے ساتھ دوبارہ جو ہے نا حسن پرویز سوترا صاحب موجود ہیں، اور جنہوں نے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے، کھیت مزدوروں کے حقوق کے لیے، بھتہ مزدوروں کے لیے اور خصوصی طور پر صنعتی ورکروں کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے آج ان سے کچھ بہت اہم سوال کرنے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کروں، آپ مہربانی فرما کے یہ ایک ویڈیو دیکھ لیں۔ لیکن وہ اس طرح ہو رہا ہے جی، سارے نال بے انصافی ہو رہی ہے، کوئی انصاف نہیں کیتا جا رہا۔ مریم صاحبہ نے سارے نال وعدہ کیتا ہے جی، جس طرح ہی عید آ رہی ہے جی تانوں ڈبل تنخواہ ملے گی، اینی محنت کرن دے باوجود بھی سانوں کوئی انصاف نہیں ملیا۔ سانوں ڈبل تنخواہ کی سانوں تے سنگل تنخواہ بھی کوڑی نہیں ملی، جن دے دوران سانوں 27 یا 28 ہزار روپیہ جڑا وہ سانوں ملدا پیا۔ اندر دوران بھی دسو اسی محنت بھی گھٹ نہیں کی، اور کتنے کتنے تک نہ اسی گئے ہیں، کوئی ساری سنائی نہیں، کوئی ساری مدد کرنے والا نہیں سانوں ملیا۔ تو تاری مہربانی ہے کہ سارے نال انصاف کیتا جائے۔ کوئی چیز نہیں ملی جی سانوں، کہ ساری جی مہینہ 37 ہزار روپیہ تنخواہ دسی گئی ہے وہ بھی سانوں پوری نہیں ملتی پی، تو سانوں ڈبل کی کتوں امید ہو رہی ہے۔ حالانکہ کہ اسی کم محنت بھی انی زیادہ کی ہے، عید کے دوران اوجریاں یہ وہ سب کچھ، رات تقریباً اسی 1 بجے تو آ کے اگلے دن شام اسی 8-10 بجے تک نہ اتنے محنت کرتے رہے، اپنی اپنی یوسیاں کے اندر کام کرتے رہے ہیں۔ تو اندر دوران بھی سانوں کچھ بھی نہیں مل سکیا، نہ کوئی انصاف، کوئی سارے نال تعاون نہیں ہو سکیا۔ لہٰذا مہربانی ہے تاری جناب، تسی سارے نال کوئی محبت کرو، سارے نال تعاون کرو اور سانوں انصاف دیتا جائے۔ اور اسی ریگولر ڈیوٹی تے آنے ہیں، سارے اپنا ساڑی صبح 5:30 تو لے کے 1:30 بجے تک نہ چھٹی دا ٹائم ہی گیا، ڈیوٹی ٹائم ہی گیا۔ ان دے بعد بھی سانوں اتنے روکیا جاتا ہے جی، شام 7 بجے تک نہ ساڑے کو ڈیوٹی کروائی جا رہی ہے، کام کروایا جا رہا ہے، مگر انصاف پھر بھی سانوں ملتا پیا۔ تو تاری مہربانی ہے جی، سانوں انصاف دیتا جائے۔ بہت زیادہ تاڑے تعاون دا شکریہ جی اچھا، یہ سر آپ نے بھی دیکھا ہے پطرس مسیح، صادق مسیح، وقاص مسیح، روحیل مسیح جو ہے یہ چیخ چلا رہے ہیں کہ محترمہ مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ قربان عید پر جو ہوئی ہے اس پر انہوں نے بے پناہ کام کیا ہے صنعتی ورکروں نے، تو انہوں نے خوش ہو کے کہا تھا کہ صفائی جو صاف ستھرا پنجاب ہے نا یہ بالکل صاف ستھرا تھا، کہیں سے کمپلین نہیں ہے، کہیں گند نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا یہ ایک اضافی تنخواہ دی جائے گی، ان کو 10,000 روپے بھی دیا جائے گا۔ اب ان کو جو ہے نا اضافی تنخواہ نہیں ملی۔ حسن پرویز سوترا صاحب، آپ اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں عبدالرؤف صاحب آپ کا، آپ نے بڑے اہم ایشو پر گفتگو کرنا چاہی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور تمام دنیا کو کہ سینٹری ورکر وہ طبقہ ہے جس میں اکثریت مسیحیوں کی ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ انہیں کسی دور میں بھی ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے گئے۔ جہاں تک رہی یہ پطرس مسیح کی چیخنے کی کہ جی ہمیں جو اضافی تنخواہ سی ایم صاحبہ پنجاب نے اناؤنس کی تھی وہ نہیں ملی، تو اس کے متعلق نہ صرف پطرس مسیح کی کمپلینٹ ہے، لاہور کے علاوہ تمام اضلاع میں یہ شکایت موجود ہے کہ مزدوروں کو، سینٹری ورکروں کو جو اضافی تنخواہ سی ایم صاحبہ کی طرف سے اناؤنس کی گئی تھی وہ نہیں ملی۔ اور یہاں تک کہ جو چیک انہیں دیے گئے ہیں ان چیک میں بھی بہت بڑا گھپلا ہوا ہے سینٹری سپروائزروں کے ذریعہ سے۔ کمپنیوں کی انتظامیہ نے سینٹری ورکر مزدوروں سے کسی سے 2,000 روپیہ، کسی سے 3,000 روپیہ، یہاں تک شکایتیں موجود ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیے ہی نہیں گئے، اور وہ چیک کیسے کیش ہو گئے، کس طرح مطلب معاملہ ہوا۔ یہ بہت بڑا اعلامیہ ہے پوری قوم کے لیے کہ وہ لوگ، وہ شہری جو خود کو گندا رکھتے ہیں، صبح نہارے منہ اٹھتے ہیں، وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کے دروازے کے باہر آ کر کام کرتے ہیں، ان کی نالیاں، ان کی سڑکیں، ان کے سیوریج سب کچھ صاف کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو ان کی بر وقت اور پوری تنخواہ نہ ملے، اور اگر کوئی ایوارڈ ان کے لیے حکومت اناؤنس کر دے اور وہ ایوارڈ چوری کر لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کتنا بڑا دھوکہ ہے۔
नहीं, यहाँ पर तो कितने लोग ऐसे भी हैं क्रिश्चियनों के, वो कहते हैं कि जो ये सैनिटरी वर्कर हैं, सफाई करने वाले, ये हमारे सुपर हीरो हैं, उनको जो है ना स्वीडन ने भी अवार्ड दिए हैं, ILO ने भी अवार्ड दिए हैं, अमेरिका तक ने अवार्ड दिए जी उनको। ये तो बड़े अफसोस की बात है। वो एक तरफ कह रही है सुपर हीरो हैं, दूसरी तरफ जो सैनिटरी वर्कर हैं, मसीह हैं, उनका ये हाल है कि उनको तनख्वाहें भी वक्त नहीं मिल रही। मैं समझता हूँ कि जब इन सैनिटरी वर्करों से काम लेना है तो ये सब के सुपर हीरो हैं, लेकिन जब इन्हें इनकी मराद जो गवर्नमेंट की तयशुदा है, जो उनका बुनियादी हक है, जब वो उन्हें अदायगी करने का वक्त आता है तो फिर उन्हें सुपर हीरो नहीं बल्कि उन्हें ज़ीरो समझा जाता है। अच्छा जी, सोता साहब, हम ये भी चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो LWMC है, ये एक कंपनी है। कंपनी क्या, ये जो सैनिटरी वर्कर हैं सुबह 5 बजे काम के लिए आते हैं, क्या इनको सुबह का नाश्ता मिलता है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि बड़ा आपने बहुत ही नाजुक सवाल कर दिया। उन्हें सुबह का नाश्ता देना तो दूसरी बात, उन्हें तो अगर उनकी पूरी तनख्वाह मिल जाए बगैर यानी उनसे भत्ता लिए, चूँकि हर माह सैनिटरी सुपरवाइज़र जो है उसके ज़रिया से कंपनियां जो है 5,000 हर सैनिटरी वर्कर से वसूल करते हैं, और फिर उससे बड़ा जुल्म ये कि हर सैनिटरी वर्कर की सुपरवाइज़र जो है वो 2 से 3 गैर हाजिरियाँ लगाता है जानबूझकर। बेशक वो 30 दिन मौजूद हो, वो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे उससे काम लिया जाए, तब भी उसकी गैर हाजिरी लगेगी, इसलिए कि सैनिटरी सुपरवाइज़रों को हुक्म है, मैनेजरों को हुक्म है, वो फिर जो पैसा वो गैर हाजिरियों की मद में बचता है वो कंपनी एंजॉय करती है। अच्छा, वो मेरे ख्याल से कंपनी इंतजामिया की एक पॉलिसी है कि जो सुपरवाइज़र है उसने कम से कम जो है ना इनकी जो है ना हाजिरियों 22 या 23 शो करनी है। बाकी जो है ना उन्होंने हुकूमत से भी पैसे लेने हैं, आप भी कफला करने हैं, करोड़ रुपये कमाने हैं। इससे अच्छा ये गवर्नमेंट जो सी है हमारी पंजाब हुकूमत, ये क्यों नहीं इनको कॉर्पोरेशन में भर्ती करती? देखें जी, यही तो एक जुल्म है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ लोग नहीं करते, यानी लाखों की तादाद में पाकिस्तान में सैनिटरी वर्कर हैं और वो मसीही हैं, अब उनको टेम्परेरी भर्ती किया जाता है। कभी किसी को कंट्रैक्ट बेस पे भी भर्ती नहीं किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कानून मौजूद है कि जो कंट्रैक्ट पर भर्ती होगा उसके बाद किसी वक्त भी उसे मुस्तकिल किया जाता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वाज़िया तौर पर फैसला है कि जो है ना ठेकेदारी निज़ाम, ये तो ख़त्म ही है ना। अब तो मेरे ख्याल से हुकूमत खुद जो है ना वायलेशन कर रही है। मुझे नहीं लग रहा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब कब इस पर एक्शन लेंगे, कब सदर पाकिस्तान एक्शन लेंगे, कब वज़ीर आज़म एक्शन लेगा। वैसे कि हर चीज़ पे एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। जहाँ पे इनको नज़र आता है कि क्रिश्चियन वर्कर हैं, सैनिटरी वर्कर हैं, गरीब वर्कर हैं, इस पर वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। हमारा जो मीडिया है ना ये भी मुकम्मल तौर पर खामोश है, कालम निगार भी मुकम्मल तौर पर खामोश है। अंग्रेजी के जो कालम निगार हैं खास तौर पर चैनल, TV चैनल, ये भी मुकम्मल तौर पर खामोश है कि ये और वेस्ट मैनेजमेंट के इश्तिहार मेरे हैं, इसलिए वो भी खामोश हैं। उनके ऊपर भी जो है ना उन्होंने जो है उनका भी मुंह बंद कर दिया मीडिया के, हमारे खिलाफ कोई ना बोले और हम जितना चाहे जो है ना ये जो गरीब क्रिश्चियन वर्कर हैं, सैनिटरी वर्कर हैं, इन पर जितना चाहे जुल्म करें। देखें, जहाँ पर बात है मीडिया की, वो तो उसे शायद किसी का हुक्म है या उनकी अपनी ज़ाती पॉलिसी बन चुकी है। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो जो कुछ होता था उसमें से कुछ % उसे रोक लिया जाता था और बाकी जो मसाइल हैं हमारे उन्हें दिखा दिया जाता था। तो अब टोटली बैन लगता है, अब टोटली ऐसे लगता है कि जैसे बैन हो चुकी हैं चीज़ें। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर लेबर कानून के मुताबिक तो जो उनसे है ना कंपनी में जहाँ 200 वर्कर, मैंने आपको बात की है कि जहाँ पर मौजूद होंगे वहाँ पर खाना दिया जाए। अब यहाँ पर सैनिटरी वर्कर जो है ना लाहौर में अभी ईद के दौरान मरियम नवाज ने बहुत ज़्यादा इश्तिहारबाजी की थी कि 50,000 सैनिटरी वर्करों ने काम किया है। अब इतनी बड़ा ग्रुप है, इतनी इसकी तरक्की हो गई है, मेरे 15 से 20 साल तो हो गए हैं इसको।
शहबाज शरीफ के दौर का आया हुआ है। तो अभी तक इनको जो से मेरे ख्याल से 2 बोनस ही हैं वर्करों को जो मिल रहे हैं, इसमें इजाफा क्यों नहीं हो रहा? देखिए जी, बड़ी तगदो के बाद जब यूनियन बड़ी मजबूत थी कॉरपोरेशन में, लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, तो उस वक्त यूनियन की जदोजहद से साल में एक एक्स्ट्रा बेसिक पे जो है वो दिसंबर के महीने में सेंट्री वर्करों को मिलती थी। अब ईद पर जो उन्होंने अनाउंस किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा शुगून है, लेकिन मजदूर के लिए, सेंट्री वर्कर के लिए उस वक्त अच्छा शुगून है। वो अवार्ड जो अनाउंस किया गया है उसकी मराद जो है वो मजदूर के घर तक पहुँचे। नहीं, ये तो देखें जी, अब 1 महीने से तकरीबन 7 जून की जो थी ना, ये कुर्बान ईद थी हमारी। तो अब जो है ना, आज हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो 18 जुलाई है, तकरीबन मरियम नवाज के 40 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक जो है ना सेंट्री वर्करों को मैं देख रहा हूँ कि बोनस नहीं मिला। इजाफी तनख्वाह का जो उन्होंने ऐलान किया था, ये बहुत बड़ा जुल्म है, इंतहा है जुल्म की कि सीएम हुक्म कर रही है। हालांकि सीएम हुक्म करे तो मैं कह रहा हूँ इतना काम हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और ना ही कोई वजीर ने कोई एक्शन लिया। ये लेबर वजीर का तो काम बनता है ना, सेक्रेटरी बर्दियात का तो काम बनता है ना कि वो कुछ बोले, देखिए जी, या अपोजिशन कुछ बोले। देखिए, अपोजिशन जो है उनको इमरान खान के इशू के अलावा कोई काम नहीं, ना वो कौमी असम्बली में और तमाम सूबाई असम्बलियों में ना कोई इशू रेज़ करते हैं, ना किसी इशू पर डिस्कस करते हैं। उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इमरान को रहा करो। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि इमरान खान एक सियासतदान है, उसे आज़ाद करना चाहिए। हम पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी उसकी इस हद तक हमायती है कि उसे रहाई मिलनी चाहिए। लेकिन रही बात जब जुल्म हो रहा है सेंट्री वर्करों के साथ, और सेंट्री वर्कर ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं, वो पीटीआई के भी तो वोटर हैं, पीपल्स पार्टी के भी तो हैं। ना पीपल पार्टी बोलने के लिए तैयार है, ना पीटीआई बोलने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो मजहबी तंजीमों की सीटें हैं वो भी मौजूद है। नहीं, इसके अलावा जो मजदूरों के फेडरेशनें हैं, यूनियनें हैं, वो भी इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। जो ILO के नुमाइंदे बने हुए हैं पाकिस्तान में, वो भी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। सेंट्री वर्करों पर जितना जायज़ जुल्म हो, उन्होंने भी ना कोई बयान देना है, ना कोई एहतजाज करना। देखिए, वो क्यों करें? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने मफादात हैं। अब लाहौर में इस मैनेजमेंट को देखें कि उसमें कोई क्रिश्चियन यूनियन नहीं है। अब 15,000 से अब यहाँ पर हैं सेंट्री वर्कर हैं। वो सेंट्री वर्कर सिर्फ एक दिन के लिए अपना हाथ रोक लें तो सुबह तक लाहौर को होश आ जाएगी। लेकिन उनको इंतज़ामिया ने इस तरह से गमराह किया हुआ है यूनियनों को। कोई एक यूनियन भी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे फाल तरीका से काम कर रही हो, बल्कि हर कोई अपने अपने नंबर टांगने के चक्कर में है। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने असलम परवेज़ सोत्रा साहब की बातें सुनी हैं, तो उन्होंने मरियम नवाज को अपना वादा याद दिलाया कि जो उन्होंने इजाफी बोनस का ऐलान किया था वो सेंट्री वर्कर जो है उनको फौरी तौर पर अदा किया जाए। और जो इन्होंने तजावीज़ दी हैं, ये कॉरपोरेशन में जो है ना इनको सेंट्री वर्कर को जो है ना रेगुलर किया जाए। और ये जो आपने एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है, इसको ठेकेदारी निज़ाम, इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वैसे आप हाई कोर्ट के फैसले पर तो बहुत जल्दी अमल दरामद कराते हैं जी। हाई कोर्ट का हुक्म है हेलमेट पहनना है, बस 2000 रुपये का चलान हो जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, इसको ये किसी को नहीं याद है कि इस पर कौन अमल दरामद करे। मैं जो इंसानी हकूक़ के वज़ीर हैं आज़म नज़ीर तारा, उनसे भी मुतालबा करता हूँ कि वो भी इसका जो है ना इंसानी हकूक़ का केस है, वो भी इसका नोटिस लें। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर शहबाज शरीफ साहब भी इसका नोटिस लें, और अपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो भी इस पर नोटिस लें। मैं आज सरकार को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें वज़ीर आला साहबा, आप हमारी भी वज़ीर आला हैं, आप सेंट्री वर्करों की भी वज़ीर आला हैं, आप ताजरों की भी वज़ीर आला हैं, अपने सूबे की आप वज़ीर आला हैं। लेकिन देखें जुल्म, एक सेंट्री वर्कर पतरस मसीह ने ये कहा है कि मुझे
آپ کی اضافی اناؤنس شدہ تنخواہ جو ہے، جو عید پر آپ نے دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ نہیں ملی، اور آپ کے ستھرا پنجاب کی جو کمپنی شیخ پورہ میں کام کر رہی ہے، ان کے مینیجر مزمل نے اور یو سی نمبر 29 کے جو سینٹری سپروائزر ہیں شہری بٹ، انہوں نے اسے ٹرمینیٹ کر دیا ہے، اور ٹرمینیٹ کرنے کے بعد اسے کہا کہ آپ وردی جمع کرائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ابھی تک تو وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو، وزیر لیبر کو، وزیر بلدیات کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، لیکن وہ نوٹس لینے کی بجائے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس سینٹی برگر کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ اب جب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو یعنی لوگ تو روئیں گے۔ جب آپ نے اناؤنس کیا، لاہور والوں کو دے دیا اور باقی کو نہیں تنخواہ ملی، تو وہ لوگ چیخیں گے۔ یہ تو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے۔ تو ہاں، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس زیادتی کا آپ کو نوٹس لینا ہوگا۔ خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو۔ پاکستان زندہ باد۔